Welcome back from the break. You're watching News X and I'm Ms. Avri Jindal. In late December 2025, Indore, which is of course India's cleanest, if I should say, city for 8 consecutive years, faced a shocking public health crisis in its Bhagirathpura area. What am I talking about? Contaminated municipal drinking water sourced from the Narmada pipeline triggered a severe outbreak of vomiting and diarrhea. At least 7 lives have been lost. Reports are also suggesting that that number perhaps could be 13 as we speak. There are over 1,100 residents who have fallen ill. They require hospitalization at this point in time. Investigations have revealed that the deadly combination of infrastructure failure and at a police checkpost where sewage seeped into the main water line is what's being assessed. Now, what are the lapses, viewers? We've put together 5 of them and I'm going to take you through each of them. Number 1, leakage in the main water pipeline. A loose joint in the primary Narmada water supply pipeline created a vulnerability, allowing external contamination to enter the drinking water directly. That's lapse number 1 that we're talking about. Lapse number 2 is pertinent. It is about the toilets that were made above this pipeline. A newly constructed public toilet at the Bhagirathpura police checkpost was built directly over the main pipeline, placing human waste close to the water supply altogether. That is number 2, very critical to assess. Lapse number 3, toilet's pit lacked septic tank. The toilet discharged waste into the open soak pit without any proper septic tank or in fact lining, enabling raw sewage to seep into the ground unchecked. That's lapse number 3. Lapse number 4, contamination in the main line itself. Sewage from the open pit infiltrated the leakage pipeline joint at the main supply level, contaminating water before it branched out to thousands of households. Like I said earlier, there are 1,100 people who are bearing the brunt as we speak. There are 8 people who have lost their lives, but reports are suggesting that that number perhaps at this point in time could be 13 as well. And lapse number 5, finally, delayed detection after contamination. Symptoms spread widely over days before authorities pinpointed the source, delaying response and allowing the outbreak to worsen. I started by saying that this is Indore, the city which is known in India to be the cleanest. And we're right now facing a situation where, because of water contamination, viewers, we're seeing people being hospitalized left, right and center. I have just given you the lapses. In fact, to take this forward, my colleague Naz Patel is joining us at this point in time from Bhagirathpura in Indore. Naz, if you can hear me. Okay, we'll go to Naz momentarily, but for now, viewers, the 5 lapses that I have just outlined for you. We're talking about water contamination. It's the lives, it's the people who are bearing the brunt of it. We just, in fact, शामिल है, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो अधिकारी है वो सिर्फ 3 से 4 मौत की ही पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। भैया, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, दूषित पानी से कई लोगों की जान चली गई, हम देख रहे हैं कि काफी आक्रोशित भी है लोग। देखिए, जब इतनी बड़ी दुर्घटना होगी तो आदमी आक्रोशित तो होगा। दूसरी बात क्या कि नगर निगम की लापरवाही के कारण जो पानी की सप्लाई दी टंकी के द्वारा, उसके अंदर या तो इन्होंने क्लोरीन की मात्रा है, दवाई की मात्रा जो शुद्ध करने के लिए डाली जाती है वो अधिक डाली जाती है। अब ये वर्तमान में ये छिपा रहे हैं कि हमारी नर्मदा नदी से जो पानी आता है मंडलेश्वर से, तो वहां से इन्होंने क्लोरीन की डाली है। तो यदि होता तो पूरे इंदौर शहर ये जिले में पीता है तो उसमें भी नुकसान होना था। ये इसी टंकी से, यानी भागीरथपुरे की जो टंकी है उसमें से ही पानी की गड़बड़ करी है। क्लोरीन की मात्रा अधिक होने से, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, अधिक होने के कारण ये घटनाक्रम बना है। कब से हो गया था इन दिनों, क्योंकि अभी हम देखते हैं हालिया दिनों में बहुत सारे इस तरह लगातार हुआ, लेकिन कब से हो रहा था? ये आज 4था या 5वां दिन है। तो 5 दिन होने के बाद ये स्थिति बन रही है
ये आज तो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन कल परसों 3 दिन 4 दिन तो बहुत ज्यादा था, जिसमें मेरी एक बहू की इसमें उसमें आ गई है अतिक्रमण, इसमें बीमारी डायरिया। हाँ, जिसके आप लोग बाद शिकायतें की थी? शिकायत तो जनता करती रहती है हमारे यहाँ, और जरा सा भी कचरा होता तो शिकायत करते जाते, पानी दूषित होता था, इसके पहले भी चलता रहा है। और इतना, ये तो सिर्फ दवाई के कारण हो सकता है बस, इसके पहले भी हम लोग दूषित पानी आया, ट्यूबवेल का पानी पी रहे थे, वो भी दूषित था, इनके द्वारा घोषित है नगर निगम के। जी बिल्कुल। नाज हमें ये भी समझाइए कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, इतने सारे लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, नंबर क्या है, हमको क्या कंफर्मेशन मिली है इसको लेके, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं इन लोगों को जिनके इलाज हो रहे हैं, उस पर हमारे को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं वही क्षेत्र है जहाँ पर लगातार जो दूषित पानी है उसका कारण है, या ये कह सकते हैं कि जहरीला पानी है। ये तमाम जो घर है यहाँ पर अधिकांश घरों में लोग बीमार हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एम्बुलेंस भी है और आगे ही पास में एक डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी में भी अभी यहाँ पर काफी लोग भर्ती हैं और इंदौर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर भी मरीज उपचार कर रहे हैं। साथ ही एक अपडेट और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आज सुबह यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और वो जो लोगों के घरों में डेथ हुई है वहां पर वो मुआवजे का चेक देने गए थे, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला था। महिलाओं ने उन्हें बेरंग यहाँ पर लौटा दिया है, साथ ही जो चेक है उसको भी यहाँ पर वापस कर दिया गया है। तो स्थानीय लोगों में काफी यहाँ पर आक्रोश है। उनका यही कहना है कि जब लगातार यहाँ पर शिकायत की जा रही थी तो शिकायत की सुनवाई क्यों नहीं हुई। अगर शिकायत की सुनवाई हो जाती तो इतना बड़ा घटनाक्रम, इतना बड़ा कांड यहाँ पर नहीं होता। और जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 14 मौत हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। सभी यही बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 4 मौतें हुई है। बहरहाल इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है जो जांच कर रही है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जो है संजय दुबे को यहाँ पर भेजा है। उन्होंने यहाँ पर सुबह पूरा निरीक्षण किया है, टंकियों का निरीक्षण किया है, जो ट्यूबवेल आ रहा है वहां के पानी का निरीक्षण किया है, साथ ही जो दूषित पानी है उसको भी यहाँ पर उन्होंने सैंपल लेकर भेजा है कि आखिर जो पानी है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या गड़बड़ी है। तो लगातार जो नेता है वो दौरा कर रहे हैं, अधिकारी जो दौरा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो अस्पताल है वहां पर तो आप कह सकते हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और भी कई लोग हैं जिनसे हम यह बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। आप बताएं इस तरह से दूषित पानी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, पहले की शिकायतें हुई थी? सुनवाई नहीं हुई। किस तरह का पानी आ रहा था जब आपने बोला, पार्षद को भी बोला हमने? गंदा पानी आ रहा है, तो गंदा पानी पी और आदमी मतलब बीमार पड़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जगह जगह गाड़ियों में खड़ी हुई है। अब ये समस्या का हल अगर हो तो पर ज्यादा और समस्या नहीं होती। क्या है, समस्या यही है कि मतलब आदमी मतलब अस्पताल में भर्ती है। हाँ बिल्कुल, कई जो पेशेंट्स है वो यहाँ पर भर्ती है, करीब 190 पेशेंट है अधिकारिक तौर पर तो अस्पताल में यहाँ पर अभी भर्ती हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सही आंकड़े हैं सामने अभी तक नहीं लाए गए हैं और लगातार यही किया बोला जा रहा है कि स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर हम देख रहे हैं जो लोग हमें बता रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अगर पहले ही हालात यहाँ पर सुधार लिए जाते तो इस तरह मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ता। चूंकि ये भागीरथपुरा क्षेत्र है और यहाँ पर काफी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, कह सकते हैं कि काफी एक तरह से इंदौर का थोड़ा सा ये पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर जो मजदूर टाइप के लोग हैं वो भी यहाँ पर अधिकांश लोग रहते हैं। और साथ ही जो मंत्री है या अधिकारी है, स्थानीय जो प्रतिनिधि का यही कहना है कि जो ड्रेनेज लाइन है वो
करीब 40 साल पुरानी थी और उसको बदलने का यहाँ पर काम भी किया जा रहा था। लेकिन अगर बदलने का यहाँ पर काम किया जा रहा था तो पहले से क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया गया कि ड्रेनेज लाइन जो है उसको ठीक करना है, तो कहीं पानी की सप्लाई जो होगी उसको किस तरह से बेहतर किया जाएगा ताकि जो परेशानी है स्थानीय लोगों को, रहवासियों को, वो यहाँ पर ना हो। एक महिला और हमारे साथ, हम उनसे भी बात करके पूछते हैं। दीदी, जिस तरह से क्षेत्र के हालात बने हुए हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे मामा भी है, उनको भी 4-5 दिन से उल्टी दस्तक हुए, 2 दिन बर्मा गया था, यहाँ से उनको वहाँ पहुंचा दिया अरविंदो में। अभी हालत खराब है उनकी, सीरियस है वो? सीरियस है। अच्छा, तो दीदी पहले भी कई बार बोला गया होगा क्या आप लोगों हाँ, ने? गंदा पानी आता है, बारिश में भी आता है गंदा पानी। कई बार शिकायत हुई है यहाँ पे, पर सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं यहाँ से जो पानी वगैरह आता है? इस बार तो और ज्यादा ही हालत हमारे खराब यहाँ है। तो बोरिंग हम उसका पी लेते हैं, बोरिंग का। अब बेचारों का नहीं है, वो तो मजबूरन पीते ही है ना वो पानी। जी दीदी, एक 5 माह के मासूम बच्चे की भी मौत हुई हाँ, वाकई में। हाँ, इधर गली में भी 2 जने अभी बिल्कुल घायल है। जी, इधर गली में भी 2 जने अभी घायल हुए। मतलब दीदी हम ये कह सकते हैं कि पूरे भागीरथ पूरा क्षेत्र में हर घर में 2-3 हाँ, मरीज मिलेंगे हाँ है। और दीदी, और ऐसे चेम्बर हैं जो कम से कम 4-5 साल से खुले ही नहीं है। अच्छा, कल गाड़ियों ने उसमें आई है ना, तो एक गाड़ी भर के, जो गाड़ी आती है ना नगर निगम की, ये भर के एक चेम्बर में से निकला कचरा। दीदी अंदाजन आपको क्या लगता है? क्योंकि जो प्रशासन है वो तो ये कह रहे हैं 4 मौतें हुई है या उससे ज्यादा नहीं, आपको बहुत अंदाजन ज्यादा, क्या लगता है दीदी? बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा। कम से भागीरथपुर में 2,000 हुई है। आपको ये ऐसा लग रहा है? एम्बुलेंस जो खड़ी है ना, 10-15 मिनट में भर के जा रही है। अच्छा, मैं तो यहीं की बैठती हूँ ना, तब देखती 10-15 मिनट में जाती है ये भर भर के। गंभीर हालत में जा गंभीर रही है। हालत। दीदी, जो मुआवजा दिया जा रहा है जिनके घर में शौक है, जिनके घर में अभी तो किसी को नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं आज बांटने भी गए थे तो किसी ने नहीं मिला। अभी किसी तो नहीं मालूम, पर अभी तक तो, कल तक तो किसी को नहीं मिला। और अस्पताल में उपचार वगैरह जो अच्छे से मिल रहा हाँ, है वो तो बोला मिल था। रही है, वो तो मिल रहा है। मिल रही है, वो तो करवा रहे हैं। दीदी, आपको लगता है कि इस मामले में जो भी दोषी उनको किस तरह की सजा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब देखो उनके घर से होते तो बात की, अब ये तो जनता है, जनता की कौन सुनता है? बड़े बड़े हैं नेता हैं, उनकी सुनाई होती है। लखपति लोग गरीब चार तो मारा जाता है ना बेचारा। मासूम बच्चे किसी की मर गई है, किसी के बड़े मर गए हैं, क्या? बिल्कुल, तो ये इस क्षेत्र की रहवासी, उनका यही कहना है कि जिस तरह से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, इन्होंने जो बताया ये वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर इस तरह के मौत के आंकड़े अगर सामने आए हैं तो काफी गंभीर स्थिति है। ऐसे में सरकार को यहाँ पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाज, एक काम हालांकि करिए, ये एक काम करिए, आप वहीं पे हैं भागीरथपुर में, इंदौर में जो है, एक काम करिए, इतनी लंबी सड़क है, वहाँ पे जाइए। हम पानी भी देखना चाहते हैं, अगर कोई आसपास में टैप है, आप लोगों से बात करिए, अगर वो हमारे को दिखा सकते हैं, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि वाटर कंटामिनेटेड है ये तो हमें मालूम पड़ गया है, बट क्या वो पानी मैला है, वो साफ लग रहा है, हमें इसमें जानकारी चाहिए। आप एक काम करिए, इतनी लंबी सड़क है, लोगों से बात करते करते हमें पानी भी दिखाइए कि ये पानी कैसा दिख रहा है, कि इसको देख के लगता है कि ये कंटामिनेटेड है या ये साफ पानी लगता है जो कंटामिनेटेड है, हमको इस पे जानकारी चाहिए। नाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। All right, so while my colleague Naz over there shows us around, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भागीरथपुर क्षेत्र में लगातार जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक है। आप देख सकते हैं कि ये जो रखा हुआ है, वगैरह जो रखा हुआ है, और किस तरह का यहाँ पर गंदा पानी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप आइए मैडम, आपको दिखाऊं। देखिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमको कहीं लेके जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात है, कितना गंदा पानी यहाँ पर है। और यही शायद गंदा पानी लोगों ने किया है, इस वजह से यहाँ पर एक तरह से भयावह बीमारी है वो देखने को मिल रही है। हम आप बता नहीं सकते, इतने गंदे रास्ते से हम यहाँ पे देश की क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने गंदे हालात है, और पानी और चीजें हैं वो ड्रेनेज साइड से मिली होगी।
आप देख सकते हैं ये बेच लाइन है, यहाँ पर इतने गंदे हालात है। देश की क्लीनेस्ट सिटी है, 1-2 नहीं पूरी 8 बार। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के गंदे हालात है और यही जो पानी है वो यहाँ पर मिला होगा। हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि इंदौर शहर के जो नेता हो या अधिकारी हो वो लगातार जब कोई अवार्ड की बात आती है तो वो पहले आ जाते हैं अवार्ड लेने के लिए और अपनी पीठ थपाते हैं कि हमारी वजह से इंदौर शहर आज नंबर 1 है और इंदौर शहर को इस तरह के पुरस्कार मिले हैं। लेकिन गलती होने पर कोई भी आगे नहीं आता है और ये नहीं मानता है कि जो गलती है संभवतः उनकी वजह से हुई है। हमने दिखाया कि किस तरह से मक्के में भी यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पर रखा हुआ है और उसके आसपास कितनी ज्यादा गंदगी है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और पानी के लिए मजबूर है। भाई साहब पूरा जो घटनाक्रम हुआ अभी हमने देखा कितने गंदे हालात है, गंदा पानी वगैरह भी है। तो मिल भी रहा होगा यहाँ के जो नलों में पानी आता है, क्या कहेंगे आप? मैडम मैं तो सोच रहा हूँ 8 दिन पहले तो सब कुछ पानी में कड़वाहट से आई, उस कड़वाहट के बाद से लोगों को उल्टी दस्त चल रही और उसके बाद से कि हमारी खुद की बहू भी अभी एडमिट है केएसवेल हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो तो एकदम उसके हो ही हाथ पे खिंचाने लगे, दस्त उल्टी दस्त चालू हो गई, बाटने लगी, कोई फायदा नहीं फला, उसको भी एडमिट करना पड़ा। तो उसके बाद में पानी की शिकायत तो आज में होती थी, गंदगी में आती रहती थी, अक्सर आती रहती, शिकायत तो करते रहते थे। शिकायत करते रहते थे, फिर आपने अपने स्तर की भी कोशिश करी कि पानी की जांच तो करवाई, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मैडम जाके हम लोग कंप्लेन कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है, हाँ आएगा पानी साफ आएगा, बस तो फिर हम लोगों ने पानी पीना भी बंद कर। इस तरह के ये हालात है कि लोग किस तरह से परेशान है। यहीं पास में डिस्पेंसरी भी है, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे कि अभी भी वहां पर बहुत सारे जो पेशेंट्स है वो वहां पर एडमिट है और क्षेत्र में लगातार इस तरह से नाज मेरी दरख्वास्त है आप हमको पानी का सप्लाई दिखाइए। आपसे जो अभी बात कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर वो आपको कोई टैप वाटर सोर्स दिखा सकते हैं, हम देखना चाहते हैं वो पानी मैला है, साफ दिखता है, स्थिति क्या है, क्या लोगों को दिख रहा था कि ये पानी मैला है या फिर वो साफ लग रहा था इसीलिए किसी को मालूम नहीं पड़ा, हम ये जानना चाहते हैं। जो इंसान आपसे बात कर रहे थे, मेरी दरख्वास्त है आप उनसे पूछिए कि अगर वो टैप वाटर सोर्स दिखा सकते हैं, हम वो भी देखना चाहते हैं कि पानी का कैसा रहा है पानी अभी। बिल्कुल वही आपको बोलना चाह रही थी कि जहाँ से पानी सप्लाई होता है या जो जहाँ से पानी की पाइपलाइन थी वो यहाँ से दूसरी जगह पर है, थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ से भागीरथ के पास ड्रेनेज लाइन थी वो दूसरी जगह पर है। तो वहाँ पर अभी ड्रेनेज लाइन जो है पानी का जो पाइपलाइन उसको ठीक किया जा रहा है। और इन लोगों के घर में कैसा पानी आ रहा है? ये जो लोग अभी यहाँ पे हैं, भागीरथपुर के जो सिटीजन्स हैं, उनके घर पे पानी कैसा है? सामने आया उसके बाद जो है नगर निगम ने जो मेन जो पानी की यहाँ पे सप्लाई की बंद कर दिया था और जो नगर निगम के टैंकर है यहाँ पर अभी पानी सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की है कि अगर उन्होंने पानी स्टोर करके रखा तो उस पानी को यूज नहीं करें। नगर निगम के टैंकर अब घर घर जाकर पानी सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में कई लोगों के पास जो बोरिंग है वो बोरिंग का पानी ले रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि बोरिंग का जो पानी यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नगर निगम द्वारा सप्लाई किया जाता है टंकी के जरिए, पाइपलाइन के जरिए जो लोगों के घरों में नलों में आता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बोरिंग में नहीं। जिनके घर में बोरिंग है वो बोरिंग का पानी यूज कर रहे हैं और नगर निगम की टैंकर सप्लाई कर रहा है, उससे पानी दिया जा रहा है। और उस पानी के अंदर जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हम अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं, ये वही पानी है जो कि नलों के जरिए आता है और देखते हैं पानी कितना साफ है। पहले से हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा गंदगी है। ये पानी यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर अभी तो चलिए खाली है, लेकिन इसके में जो पानी है ये भर कर यहाँ पर रखते हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई यहाँ पर सप्लाई नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि दिखा सके कि जो पानी है वो नलों में किस तरह से आ रहा है और किस तरह से गंदा पानी है। करते हैं दर्शकों को हम दिखा देंगे, वहां पे थोड़ा सा काम चल रहा है, पाइपलाइन भी वहां पर जल रही है, नहीं सब पाइपलाइन जल्दी हिसाब से पानी और सप्लाई हो रहा था थोड़ा बहुत सा। क्या अपने हम दर्शक देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जेसीबी से काम किया जा रहा है और
जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर पानी यहाँ पर सप्लाई होता है। ये वाला भी हम देख सकते हैं कि ये नल यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर हमें कि किस तरह से यहाँ पर पानी आता है। हम अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर पानी के हालात कैसे हैं, साफ है या गंदा पानी है। हम अंदर जाते हैं यहाँ पर और अरे इधर 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 तो ये रही वो पानी की टंकी। आप हमारे दर्शक साफ तौर से देख सकते हैं कि ये कनेक्शन है, ये नर्मदा का ही लगा हुआ है। और ये देखिए आपने यहाँ पर कितनी ज्यादा काई वगैरह भी यहाँ पर फिलहाल जमी हुई है। तो ये जो पानी है कितना साफ होगा कितना नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं, कितना साफ पानी है। ये देखिए आप हमारे जो दर्शक साफ देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा साफ पानी नहीं है, कचरा भी मिला हुआ है। और जो पानी का जो कलर है वो यहाँ पर काला दिख रहा है। पानी में से हल्की सी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्मेल भी है। और जो पानी एकदम साफ होना चाहिए, जो दावा किया जाता है कि पानी की जो सप्लाई है वो साफ है, ऐसी नहीं है। और जो पानी है वो हल्का सा यहाँ पर काला है। तो संभवतः अभी एक दो दिन बाद इसको निकाल दिया गया होगा। ये नर्मदा की लाइन है, यहाँ की टैंक यहाँ से सप्लाई होता है, घरों में पानी आता है, ये उसकी लाइन है। और जिस तरह के ये हालात है संभवतः इस क्षेत्र में सभी जगह इसी तरह के हालात होंगे। हर घर में इसी तरह की पानी की टंकियां वगैरह बनी हुई है। किस तरह से एक मैडम ये क्या कहना चाहिए आप? दादा जी का मालूम है इतनी दवाई मिली थी, पानी की स्मेल आ रही थी। हमने फिर पी लिया गरम करके कोई बात नहीं। जब भी इन्होंने नहीं, जब इसके लोग मर गए ना, जब इनको पड़ी कि वाकई में पानी गंदा, और 15 दिन पहले इन्होंने दवाई मिली थी। अगर आप आस पास के लोगों से पूछेंगे ना तो दवाई मिलाई थी 15 दिन पहले, और इतनी ज्यादा मात्रा में मिलाई थी कि तो पानी अपन रख रहे थे और दूर से स्मेल आ रही। तो मैम आप लोगों ने कहीं बोला था कि इसमें स्मेल क्यों आ बोला रही है? मैडम इनको कि इतना दवाई क्यों मिलाई आपने? तो पहले पानी साफ करने के लिए इनको बोलना था ना मैडम कि ड्रेनेज का पानी आ रहा, मिट्टी देती ड्रेनेज का पानी आ रहा था, इस कारण हमें दवाई मिली। तो हम अलर्ट हो जाते, आरू का पी लेते हैं, गर्म करके पी लेते, जो भी। जब लोग मर गए, जब इनको पड़ी थी इतना कार्यक्रम करा रहे, और हमारे वाघेला जी तो कोई सी बात बोले ना कि वाघेला जी कौन है? ये कमल वाघेला जी पार्षद है, इनसे कोई सी चीज बोले ना आके बोले वहां पे मिलो, रूम मतलब इनका जो ऑफिस है वहां मिलो। अगर आप पार्षद है तो कराओ ना, मतलब सुनो ना, इनको बस वहां पे मिल लो, आप ऑफिस में मिलो, हम यहाँ नहीं सुनोगे आप? वोट दिया आपको, जिताया है ना, क्यों नहीं सुनोगे आप? भाई हमने तो भाजपा को देख के जिताया, कमल वाघेला जी को नहीं देखा। आप बहुत पार्षद है तो करना चाहिए ना। मैं पार्षद से आपको अलग देना चाहिए। जब इतनी आप भी यही पानी पी रहे, इतनी दवाई क्यों मिली? आपको खुद को अलर्ट हो जाना चाहिए था, यार इतनी दवाई क्यों मिलेगी, अपन पूछे। जब इतने लोग मर गए आप बोल रहे ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता मैडम। और कोई सी बात है तो पार्षद के हमारे करते ही नहीं, ऑफिस पे आकर मिलना, ऑफिस पर आकर मिलना, बस इनका एक ही। सभी घरों में इसी तरह से गंदा पानी सभी टंकी में हुआ है। हाँ मैम, सब आप यहाँ से वहाँ तक मैं इधर ही रहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए, सबके वहाँ गंदा पानी, सबके वहाँ गंदा पानी देखते हैं। मैम आपको क्या लग रहा है अंदाजन सभी घरों में बीमार होंगे इस तरह से? बाकी आप अभी ये ना है, अभी नहीं। आप देखते मरे भी हैं लोग, और कभी बीमार, मेरे कितने जेवर बीमार है, और वो देखते तड़प रहे थे। नाज इनसे ये भी पूछिए कि इनको कैसे मालूम पता चला कि पानी गंदा है? इनको क्या किसी ने आके नोटिस दिया, या एक सेल्फ अवेयरनेस आई कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है इसलिए मालूम पड़ा कि वाटर कंटामिनेटेड है? ये अवेयरनेस कहाँ से आई है? पूछा गया था तो पहले ज्यादा दवाई की मात्रा पड़ गई, बोले कि पानी आ जाए, हमने इतनी सारी दवाई मिला। अगर आप ना तो 15 दिन 20 दिन पहले नर्मदा के पानी में अधिक से ज्यादा की मात्रा में दवाई मिलाई थी, इन्होंने। और किसी ने बोला मैम किसी ने पूछा कि क्या वजह है? बोल दिया ना, बोले गंदा पानी था, दवाई की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। ऐसा नहीं बोला कि ड्रेनेज की लाइन आ रही है, लोगों ने अलर्ट होते तो मरते हैं। मतलब क्षेत्र में किसी तरह का कोई अवेयरनेस नहीं करी, कुछ नहीं करी। आप लोग थोड़ा सा पानी उबाल कर पिए, कुछ टिप्स भी दी है। वो मर गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए ना मैडम, जब इन्होंने अनाउंसमेंट करना चालू किया है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो, क्योंकि 2 दिन से अनाउंसमेंट हो गया है, 2 दिन से एम्बुलेंस वगैरह जो भी इनका है चल रहा है, पता नहीं नेता नगरी, मुझे तो पता नहीं है इतनी, बट लोगों तो मरे।
मैम जो मौत के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं आपको क्या लग रहा है उससे ज्यादा ही होंगे? ज्यादा ही है, ज्यादा ही। Okay, all right. सामने का Naz, you ज़्यादा है। continue to have those conversations with people on the ground. आप और बात करिए लोगों से. हम आपके पास थोड़ी देर में आएंगे. But thank you for joining us and sharing all those details with us. That was my colleague Naz on the ground in Bhagirathpura in Indore, where like we've been saying all along, there have been deaths that have been reported. There are people who are still hospitalized at this point in time, and the reason for that is water contamination. From what we're understanding from the people on the ground, there was no circular, there was no message that was passed. It was just their realization that people are getting, you know, people are falling ill. That is what prompted them perhaps to realize that something was wrong. There was a larger problem that they were dealing with, based on what the people, the locals on the ground are saying. What's going to happen next? We will continue to track that, but for now, a short break.